alaikum students. I hope you're all safe and sound. Today I'm going to teach you a very interesting poem named Heart of a Tree. First of all, I read it, then I will explain it. What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and eye, for song and mother croon of bird in hushed and happy twilight heard. The treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. What does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain, and seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. He plants the glory of the plain, he plants the forest's heritage, the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. What does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far-cast thought of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand hold all the growth of all over land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart, who plants a tree. This poem is written by Henry Cuyler Bunner. We should know something about the writer, The Heart of the Tree by the American poet and the novelist Henry Cuyler Bunner is a fine piece of poetry with a simple theme and a simpler structure. The poem was originally published in 1912. हार्ट ऑफ अ ट्री अमेरिकन पोइट जो है उसकी लिखी गई पोइम है और ये पोइम जो है सिंपल स्ट्रक्चर रखती है, सादा अंदाज में लिखी गई है। 1912 में इसको पब्लिश किया गया। प्लांटिंग अ ट्री इज ऑलवेज अ ग्रेट वर्क फॉर द मैनकाइंड। ट्रीज प्लांट करना वैसे भी इंसानियत के लिए बहुत अजीम काम है, बट द पोएट हैज़ फाउंड आउट न्यू वेज टू लुक एट द प्लांट्स एंड प्लांटेशन। लेकिन पोएट जो है हमें यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ फ़वाइद जो है प्लांट्स और प्लांटेशन के दिखाता है। इन हिज पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री he glorifies the act, further shows how a tree helps life on earth and says that it has a direct connection to a nation's growth. पोएट हमें ये ग्लोरीफाई करता है इस पोएम में कि जब भी कोई ट्री लगाता है तो वो अर्थ पर जो लाइफ है उसको सेव करता है और नेशंस की ग्रोथ के साथ ट्रीज का डायरेक्ट कनेक्शन है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। First stanza is, what does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. The poem opens with the refrain, which asks, what does he plant who plants a tree? And that sets the tone for the entire poem. We instantly realize that the poet is going to explain the usefulness of planting a tree. However, the poet himself answers by stating that the man plants a friend of sun and sky by planting a tree. पोएट जो है वो एक क्वेश्चन से पोएम का स्टार्ट करता है और फिर खुद ही उसका रिप्लाई करता है और हमें रियलाइज़ करवाता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री जो है वो बहुत यूज़फुल है, बहुत फ़ायदेमंद है इंसानियत के लिए। इसके साथ साथ वो कहता है कि जब कोई ट्री को प्लांट करता है तो वो सिर्फ ट्री प्लांट नहीं करता बल्कि वो सन एंड स्काई का फ्रेंड जो है उसको प्लांट करता है। A plant grows upward and aims to reach the sun and the sky, so it is as if the sun and the sky get a new friend in a tree. जब ट्री जो है प्लांट किया जाता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और आसमान तक पहुंचना चाहता है और सन तक पहुंचना चाहता है और ऐसे ही शो होता है जैसे वो सन एंड स्काई का फ्रेंड है। सेकेंडली द ट्री नीड्स सनलाइट एंड एयर टू सर्वाइव। ट्री को सर्वाइव करने के लिए भी सनलाइट चाहिए होता है और हवा चाहिए होती है। एंड फाइनली द ट्री सीम टू एब्जॉर्ब द हीट एंड सेव द अर्थ फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन, गिविंग एन इम्प्लीकेशन दैट द सन बिकम्स फ्रेंडली इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्री। सन जो है वो स्कॉर्चिंग सनलाइट जो है उसको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इंसानों के लिए सन को फ्रेंडली बनाता है। He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. Towering high means बहुत ऊंचा होना।
The speaker now adds that the man plants a flag that flies freely in the mild breeze. स्पीकर जो है, पोएट जो है, वो हमें बताता है कि जब मैन जो है वो प्लांट करता है ट्री को, तो वो ट्री प्लांट नहीं करता बल्कि एक ऐसा फ्लैग वहाँ पे प्लांट करता है जो कि माइल्ड ब्रीज में फ्रीली फ्लाई करता है. द पोएट here compares the leafy branches of the tree of a flag and the stem to the beautiful shaft of the flag that stands tall. पोएट जो है लीफी ब्रांचेस को फ्लैग से कंपेयर करता है और उसका जो स्टेम है ट्री का, उसको फूल से, जिसके साथ फ्लैग जो है वो बाइंड हुआ होता है, बंधा हुआ होता है. In hush and happy twilight heard the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. In quiet and happy twilight we can hear those birds chirping, which is harmonious to heaven's own tones. अब ट्वाइलाइट का मतलब होता है सुबह का धुंधल का, जब सुबह हल्की हल्की लाइट होती है. तो पोएट कह रहा है सुबह जब बर्ड्स चर्प करते हैं सुबह की हल्की हल्की रोशनी में, तो हार्मोनियस टू हेवंस ओन टोन्स, तो वो जन्नत की आवाज़ों की तरह फील होती हैं, बहुत खुशगवार, बहुत अच्छी फील होती हैं. In the entire first stanza of the heart of the tree, the poet accentuates the importance of trees in maintaining the holistic beauty of nature. अब जो दरमियान वाली लाइन है, ट्रिबल ऑफ हेवंस हार्मनी, पोएट जो है इसमें एक्सेंचुएट्स करता है, एम्फसाइज करता है ट्रीज की इम्पोर्टेंस पर, कि ट्रीज की वजह से नेचर जो है, कुदरत जो है वो ब्यूटीफुल नजर आती है. मोर ओवर द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक हेवन एंड आई, हेवंस हार्मनी एंड टावरिंग हाई इज एम टू गिविंग एन इम्प्रेशन दैट द वर्क ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज इंडीड अ हेवनली एंड ग्लोरियस डीड. इन वर्ड्स को यूज करते हुए, यानी कि हेवन एंड आई जन्नत के करीब, हेवंस हार्मनी जन्नत से मुताबिकत, एंड टावरिंग हाई और बहुत ऊंचा होना, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए वो ये शो करना चाहता है, ये इंप्रेशन देना चाहता है कि ये काम यानी ट्री को प्लांट करना एक बहुत ही ग्लोरियस डीड है, बहुत नेकी का काम है. सेकंड स्टैंजा, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन. अगेन पोएट जो है एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है, सो द पोएट रिपीट्स द क्वेश्चन टू बिगिन अ न्यू स्टैंजा एंड अटेम्प्ट्स टू आंसर अगेन. इन द सब्सिक्वेंट लाइन्स, the tree he plants provides us with cool shade and helps in bringing rain. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए पोएट खुद ही उसका आंसर देता है कि जब कोई ट्री को प्लांट करता है तो वो सिर्फ ट्री नहीं बल्कि कूल शेड को प्लांट करता है, एक कूल शेड प्रोवाइड करने वाली चीज़ प्लांट करता है और रेन को लाने का सबब प्रोवाइड करता है. He plants the glory of the plain, he plants the forest heritage. ग्लोरी कहते हैं खूबसूरती को, प्लेन मैदान, फॉरेस्ट हेरिटेज जंगलात का विरसा. ट्रीज आर द मेन एलिमेंट दैट मेक अ प्लेन एरिया ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. ट्रीज ही मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से कोई भी जगह सरसब्ज, शादाब और खूबसूरत नजर आती है. सो द पोएट डिस्क्राइब ट्री एज द ग्लोरी ऑफ द प्लेन. Moreover, today's single tree may turn into a forest someday. So by planting a tree now, the man plants a forest heritage. मे बी आज जो ट्री लगाया जा रहा है वो कल को एक जंगल में तब्दील हो जाए, इसलिए ट्री जो है, इसलिए पोएट कह रहा है कि ट्री लगा रहा है जो इंसान, वो सिर्फ ट्री नहीं लगा रहा बल्कि वो फॉरेस्ट के लिए हेरिटेज प्रोवाइड कर रहा है. The harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. The speaker mentions that planting a tree today would give fruit in coming days. पोएट यहाँ बता रहा है कि आजकल में जो ट्री लगा रहा है वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए फ्रूट प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है ठंडा साया प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए फ्रूटफुल होंगे. ओवर नेक्स्ट जनरेशन्स वुड बी डिलाइटेड सीइंग सो मच वेजिटेशन एंड रीप इट्स बेनिफिट्स. हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस वेजिटेशन को, इस सब्ज़ा को देखते हुए बहुत डिलाइटेड मीन खुश होंगी और इसका फल पाएंगी. So all the credit goes to the man who plants a tree. In this stanza of the poem, The Heart of the Tree, the poet stresses on the importance of planting a tree for making this earth a better living place for future generation. पोएट जो है वो इसी बात पे स्ट्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है
कि ट्री को प्लांट करना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। थर्ड स्टेंजा, what does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty and forecast thought of civic good, his blessings on the neighborhood. By planting a tree, the man shows his love and loyalty for his earth, his home, his sense of civic duty, and his blessing on the neighborhood. All these are reflected in the sap and leaf and wood in every cell of the tree. यहाँ पे पोएट हमें बताना चाह रहा है, जब कोई इंसान ट्री को प्लांट करता है तो वो ज़मीन के साथ, अपनी होमलैंड के साथ अपनी लॉयल्टी को, अपनी ईमानदारी को, वफादारी को शो कर रहा होता है। और हर इंसान जो है अपनी सिविक ड्यूटी को फुलफिल कर रहा होता है। हमारी ये समाजी एक खिदमत होती है कि अपने नेबरहुड में अपने हमसायों के लिए कोई ब्लेसिंग्स छोड़ के जाएं। तो जब कोई ट्री प्लांट करता है तो वो सदका जारिया के तौर पर उसको बाकी सब के लिए भी एक अच्छा काम करके जा रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। और ट्री जो होता है उसका हर सेल फ़ायदा देता है। उसका सैप मीन जूसेस ऑफ फ्रूट, जूसेस ऑफ ट्री, लीफ मीन पत्ते, वुड मीन उसकी लकड़ी। ट्री की जो हर चीज़ है वो यूज़ में आती है। Who in the hollow of his hand holds all the growth of all over land, a nation's growth from sea to sea, stir in his heart, who plants a tree. By planting a tree, the man directly or indirectly contribute to the nation's growth. ट्री को प्लांट करते हुए इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है नेशंस की ग्रोथ में अपना हिस्सा जो है वो डाल देता है। When a tree is planted, it sets in motion the progress of a nation from sea to sea. जब भी ट्री प्लांट किया जाता है, इट्स मीन कि नेशंस की प्रोग्रेस में, चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया में, इंसान ने अपना हिस्सा जो है वो अदा कर दिया है। And all these start from the progressive thought is the man's heart who plants a tree. और यही प्रोग्रेसिव सोच जो है, यही अच्छाई की सोच जो है वो इंसान के दिल में जो है वो भी प्लांट होती है। एक ट्री तो उसने ज़मीन पे प्लांट किया होता है, एक नेकी का ट्री जो है उसकी हार्ट में प्लांट हो जाता है। The capitalization in his indicate that the man who plants a tree is all powerful and the destiny maker of the nation. अब his का वर्ड यूज करते हुए पोइट ने उस पर्सन को जो ट्री को प्लांट कर रहा है बहुत ही पावरफुल और डेस्टिनी मेकर शो किया है। This last line is very important as it talks about the man's heart, his feelings, dreams and wishes behind planting the tree. लास्ट लाइन को में पोइट जो है लास्ट लाइंस में वो ट्री को प्लांट करने वाले इंसान के बारे में, उसके हार्ट के बारे में, उसकी फीलिंग्स और विशेस के बारे में लिखता है कि जिसने भी ट्री को प्लांट किया है उसने अपनी अच्छी फीलिंग्स को एक ट्री की शक्ल में सबके सामने खड़ा कर दिया है। दिस ऑल्सो लीड्स टू द पोएम्स टाइटल, और यही चीज़ जो है पोएम के टाइटल की बेस बनी है, द हार्ट ऑफ द ट्री। ओके स्टूडेंट्स, poem finished here. Okay, let's we know some difficult words, meaning of some difficult words. First word is anai. Anai mean near, nazdik. Treble, treble mean high piping sound, ऊंची गूंजती हुई आवाज। Flush means sudden blossom out, एकदम किसी चीज का, फ्लावर्स वगैरह का खिल जाना। Heritage mean things that are passed on the next generations, दूसरी generations में किसी भी चीज़ों का जो है वो कन्वर्ट होना, पास होना, आगे मुंतकिल होना। शेफ्ट मीन अ नैरो वर्टिकल पैसेज फॉर लाइट और एयर, हवा और रोशनी के गुजरने के लिए जो तंग सा रास्ता होता है उसको शेफ्ट कहा जाता है। हश्ड मीन क्वाइट यानी कि खामोश। सैप मीन जूसेस ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट के जूसेस या लिक्विडी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट योर comprehension skills. Answer the following questions orally. What is meant by he plant a friend of sun and sky? सन और स्काई का फ्रेंड होने से क्या मुराद है? द पोएट मीन्स दैट ट्री प्लांट डिपेंड्स अपॉन द सन एंड द स्काई टू ग्रो। ट्री जो है वो सन एंड स्काई पे डिपेंडेंट होता है ग्रो करने के लिए। डू यू थिंक दैट ट्रीज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर? शायद हम यहाँ पोएट
जो है ओके यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ट्रीज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर? क्या दरख्त जो है नेचर में एक अहम किरदार अदा करते हैं? यस, ट्रीज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर बिकॉज इट क्लींजेस द एटमॉस्फेयर एंड मेक द अर्थ टू लिवेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। ट्रीज जो होते हैं वो वाकई अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर को आबो हवा को क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर ज़मीन को इंसानों के रहने के काबिल बनाते हैं। हाउ डू ट्रीज हेल्प मैनकाइंड? ट्रीज इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं? ट्री टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। ह्यूमन ब्रीथ बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज। Human use wood to fire to make furniture and a lot of things. The leaves of some trees are very useful to make some medicines. ट्रीज जो होते हैं इसलिए भी अहम है इंसानों के लिए क्योंकि ट्रीज जो हैं ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और इसी वजह से ह्यूमन इजीली सांस ले सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और ट्री की हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ में आ रही होती है। हाउ डज प्लांटिंग अ ट्री थॉट ऑफ सिविक गुड? ट्री को प्लांट करना जो है वो एक समाजी खिदमत कैसे है? अ ट्री टीच अस थॉट ऑफ सिविक गुड। इट स्टैंड स्टिल अंडर द बर्निंग सन एंड गिव्स शेल्टर टू अदर्स। इसलिए थॉट ऑफ सिविक गुड है क्योंकि वो खुद तो सन के नीचे जो है सन की सारी स्कॉचिंग लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इंसानों के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। खुद तो जलता है सूरज के नीचे लेकिन बाकी सबको साया मुहैया करता है। The joy that unborn eyes shall see. What does the poet means by these words? In words से poet क्या हमें समझाना चाह रहा है? The poet means that if we plant trees, they will serve our next generations. पोइट हमें बताना चाह रहा है कि अगर हम ट्रीज को प्लांट करेंगे तो वो आज तो हमें फ़ायदा देंगे ही लेकिन उसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। A nation's growth from sea to sea style in his heart to plant a tree. एक्सप्लेन करना है इसको। इन दीज लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट द मोर फर्टाइल लैंड द हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज। अल्टीमेटली दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। द ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज अ बून फॉर ऑल। पोएट यहाँ हमें समझाना चाह रहा है कि ज़मीन जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, प्रोडक्शन जो है फूड की वो उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे और उतना ही ज़्यादा वो कंट्री ग्रो करेगा, तरक्की करेगा और इसी से इकोनॉमी जो है वो भी सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। बून फॉर ऑल। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस पॉइंट द पोएट मेनली कन्वेज, पोएट क्या कन्वे करना चाह रहा है? दैट अ ट्री टेक ईयर टू ग्रो, दैट प्लांटिंग अ ट्री इज अ डिफिकल्ट टास्क, और द बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज द बेनिफिट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। The next exercise is word power. Replace the bold phrases in each sentence below with suitable words from the help box. हेल्प बॉक्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और वो हमने बोल्ड वर्ड के साथ रिप्लेस करने हैं लेकिन हमने देखना है कि उनके मीनिंग सेम हों। द बेस्ट वे टू इग्नोर समवन इज टू कीप मम। किसी को इग्नोर करने का बेस्ट वे क्या है? कीप मम, खामोश रहें। कीप मम के लिए जो वर्ड हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रिमेन साइलेंट। Remain silent. Second, as ill luck would have it. As ill luck वैसे भी बदकिस्मती को कहा जाता है। तो as ill luck would have it, it started raining as soon as I stepped out of the house. बदकिस्मती से बारिश शुरू हो गई जब मैंने घर से पाँव बाहर निकाला। तो as ill luck की जगह हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो होगा unfortunately. Unfortunately. He likes to take chances while playing a game. Take chances mean take risks. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे take risks. The patient need to be properly taken care of. Taken care of mean अपना ख्याल रखने की ज़रूरत. Looked after. The word we use here, looked after. Next, why don't you two make up and become friends? Make up mean अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। वाई डोंट यू टू मेक अप, मेकअप की जगह जो हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं एंड योर quarrel, एंड योर quarrel। नंबर 6, आई वॉज इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मीन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बड़ी ही ख़राब सूरत हाल, मुश्किल वक्त। तो यहाँ पे हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डिफ़िकल्ट सिचुएशन।
My heart sank when I saw the batsman being bowled out. Heart sank mean दिल डूब जाना, एकदम परेशान हो जाना या मायूस हो जाना. जो वर्ड हम यहाँ हार्ट sank की जगह यूज करेंगे वो है felt disappointment. नंबर 8, I will look into. Look into mean किसी चीज का जायजा लेना. Look into the matter before I pass my judgment. लुक इनटू की जगह जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है एग्जामिन, मुशाहिदा करना, जायजा लेना. They criticize him for being lazy but he swallowed all the criticism. वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं लेजी होने पर, लेकिन वो क्या करता है, सारा क्रिटिसिज्म जो है वो खा लेता है, हजम कर लेता है. तो जो वर्ड यहाँ यूज होगा वो होगा एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि वो बगैर प्रोटेस्ट किए उसको एक्सेप्ट कर लेता है. Okay, students, next exercise is use of celebrate. Celebrate word, celebrate, celebrated, celebration, celebrity. These words हम इनको यूज करते हुए उन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. Does he find his new celebrant intruding on his private life? Intruding mean होता है मुदाखलत करना. Second, this is celebrated dinner to mark my success in the examination. Celebrated dinner जो कि किसी खास वजह से दिया जा रहा होता है. ऐसा डिनर या ऐसी पार्टी जो किसी खास वजह से दी जा रही होती है उसको सेलिब्रेटेड डिनर या सेलिब्रेटेड पार्टी कहा जाता है. द विक्ट्री वॉज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, कि ये जो सेलिब्रेशन की कॉज है वो फतह है. हुसैन वॉज अ सेलिब्रेटेड पेंटर. अब सेलिब्रेटेड वर्ड अगेन इसकी टू मीनिंग्स हैं. सेलिब्रेटेड मीन माहिर होना अपने काम में. I spotted a few TV dash amongst the audience. अभी TV celebrity यूज होगा यहाँ पे. How do people dash New Year in your country? न्यू ईयर को आपकी कंट्री में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ड सेलिब्रेट यूज करेंगे. एंड लास्ट वन इज द सेलिब्रेंट्स एट द न्यू ईयर पार्टी enjoyed themselves. सेलिब्रेंट्स किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करने वाले उनको सेलिब्रेंट्स कहा जाता है. Next question is frame question to the following answer using a suitable WH words. WH words mean when, where, why and who. इन वर्ड को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन मेक करने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मीना lives in Alina apartment in Banjara Hills, Hyderabad. Where does Meena live? He joined this school last year. When he joined this school, I am his friend of class 8. Who are you? She goes to JK International School. Where does she go? Her class teacher is Mrs. Komal. Who is her class teacher? Last question. Add suitable question tag to the following statement. She sings well. Does she? Most boys don't like cooking, do they? I'm older than your brother. Am I? He is a voracious reader. Is he? Boys don't play with dolls, do they? Word chapter and its exercise finished here. Stay blessed. Allah Hafiz.